Hello everyone, once again I hope that everyone are fine at their home. Okay, so we are moving to the unit 2 and we have one poem Noses, and the lesson is the little fir tree. Okay, so shall we start our poem? Okay, here is a poem, the Noses. Okay, it is written by Alan Fisher. Okay, so I'll read the poem, and at a time I'll explain you the new words also at a time only. Okay, I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with the two little holes where the breathing goes. सो यहाँ पे एक लड़की है जो शी इज़ लुकिंग एट द मिरर, वो मिरर में देख रही है एंड वो अपने नाक को बहुत फनीस्ट थिंग समझ रही है। वो नाक इतना बाहर निकल के आया है तो वो बहुत उसको फ़नी लग रहा है। एंड दे द वे इट्स ग्रोज, कितना बड़ा हो गया है, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट्स शोज विथ टू लिटिल होल्स, और उसमें दो लिटिल होल्स है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। सो शी इज टेलिंग दैट द नोज इज द फनीस्ट पार्ट इन अवर बॉडी. ओके, in this new word is mirror. You know what is mirror, right? Aina, right? That is called a mirror. In English, shows a reflection of somebody, right? And funniest means आपको पता ही है, बहुत मजाकिया, funny, right? ब्रीथिंग मीन्स जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि हम सांस अंदर लेते बाहर लेते, दैट रेस्पिरेशन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ओके, मूविंग टू द सेकेंड stanza. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. In the second stanza, the girl is saying that mirror, वापस वो अपने मिरर में देख के बोल रही, इन माई चिन. चिन मतलब जो आपके होठ के नीचे वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इन चिन. एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, एंड जो आपके बाल होते हैं, दैट. एंड बिटवीन देयर इज एन मच स्पेस, मतलब लिप्स के और नोज के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेस नहीं है, वैसा बोल रही है. एंड लाइक अ हैंडल, वो हैंडल की तरह चिपक गया है नोज, sticking there. Moving to the in this in this stanza, the new word is sticking. Sticking means किसी चीज़ से चिपक जाना, that is called sticking. Insert. Okay, moving to the third stanza. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do, it's about just look in the mirror and then no doubt you'll see how funny your nose stick out. इन द थर्ड stanza, द गर्ल इज सेइंग दैट अगर आपको कभी हंसना है, गीगल मीन्स हंसना, हंसना है या शाउट और चिल्लाना है, अगर आपको कुछ ना मिले तो अपने आप को मिरर में देख लेना. नो डाउट दैट आपको अपने आप ही हंसी आ जाएगी. ओके, सो इन दिस लास्ट stanza, द न्यू वर्ड इज गिगल. गिगल मीन्स हंसना, टू लाफ रिपीटेडली इन ए क्वाइट बट अनकंट्रोल्ड वे. ओके, हंसना. So here the summary is that in this poem there was a one girl, वो अपने आप को मिरर में देख के, she is looking herself in the mirror and thinking that nose is the funniest part in our body, and it has a two holes. उसके पास उसमें दो होल्स है जहाँ से हम लोग रेस्पिरेशन लेते, ब्रीथिंग लेते. इट लुक अगेन, वो वापस मिरर में देखती है. देन अगेन शी सिंग्स दैट उसके चिन एंड हेड्स वो सारे एक जैसे, एंड देन माउथ एंड नोज़ के बीच में थोड़ा ही स्पेस है, एंड वो के नोज़ के से अपने हैंडल की तरह चिपक गया अपने फेस में. एंड इफ़ एवर, अगर आपको कभी हंसना है तो अपने आप को मिरर में देख के यू कैन लाफ एनी टाइम बाई सीइंग योर नोज, दैट इज़ द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द nose of our body. So she is telling like that. Okay, and in this lesson the new word I just now I explained you, right? I'll read out the poem for you. Okay, I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with the two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair,
and between there isn't much space to stare with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out, right? So it's a nice poem. So moving to the new words, mirror. Just now I like explained you in the poem also. Mirror means it's a reflection of your, it's a reflection of our body or something. Okay, funniest means बहुत मजाकिया, causing laughter, amusement. Okay, breathing means the process of taking air into and exhale it from the lungs, that is called a breathing. Sticking means insert. Okay, giggle means laugh repeatedly in the quiet but uncontrolled way. Okay, now I'll explain you the question answers. Why does the poet feel that the nose is a funny thing? पोएट क्यों समझ सकता है कि नोज एक फनीएस्ट थिंग है? द नोज ग्रोज वेर इट एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस. हमारा बॉड, हमारा फेस पूरा एकदम स्टिकी है बट नोज एक ही बाहर है. इट इज़ अ फनी थिंग, दैट्स वाई. ओके, मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. वाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? हमारे लिए नोज क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉर द ब्रीथिंग, राइट. हमें नोज से हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं, दैट्स वाई. द नोज हैज़ अ टू होल्स थ्रू विच आई ब्रीथ, देयर फोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई लाइफ. वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है. डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? यहाँ पे जो लड़की के बारे में बोला था उसको अपनी नाक प्यारी थी. यस, ऑफकोर्स सबको अपनी नाक प्यारी होती है क्योंकि उसी से हम लोग सांस लेते हैं. इफ नोज विल बी नॉट देयर, हाउ कैन वी ब्रीथ, राइट? वाई डू यू थिंक सो, और क्यों? ओके, moving to the next question. Describe a few funny things you have seen do make you laugh. मतलब थोड़ी ऐसी चीज़ें बताओ जो आपको फ़नी लगती है. ओके, एंड डू देर मेक यू लाफ, और आपको हंसी आई उससे. व्हाट डज फीचर्स मीन्स? मतलब फीचर्स का मतलब क्या होता है? ओके, लुक अप द डिक्शनरी. अपनी डिक्शनरी कंसल्ट करो. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द फीचर ऑफ द पीपल? सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं. बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स मीन्स आउटर बॉडी. सब लोग एक जैसे तो नहीं दिखते, राइट? सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं. ऑफ पीपल वी कैन क्रॉस इन द वर्ल्ड, राइट? हम लोग एक क्रॉस हुए हैं. ओके, हियर सी मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सिंग द सॉन्ग एंड मैच एज यू सिंग. when you come together, ginger, take two step back and say 2 3, then start again. There was a girl, too tall and thin and fair. Her hair was a delicate shade of a ginger. So it's just a story. Okay, moving to the next one. Fun type. सिट इन अ ग्रुप. यहाँ पे आपको ग्रुप में बैठने के लिए बोल रहे. लुक एट योर फ्रेंड्स फेस. आपके फ्रेंड्स के फेस देखो एंड डिस्क्राइब यू व्हाट यू सी. और अपने फ्रेंड्स को फेस देखे वो देखो कि आप सेंटेंस बनाने यहाँ पे. लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्टैंडर्ड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू. ओके, यू कैन यूज़ वर्ड अदर वर्ड्स ऑल्सो. आप बाकी के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो. तो फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनाओगे? माई फ्रेंड हैज़ अ लॉन्ग फेस, राइट? आपका फ्रेंड का फेस बहुत लॉन्ग है. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. सेकेंड सेंटेंस, शी हैज़ अ फ्लैट नोज, राइट? फ्लैट मतलब पूरा छोटा सा. थर्ड सेंटेंस, शी हैज़ अ बिग स्पार्कल ब्लैक आइज. उसकी बहुत बड़ी आइज है. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? डिस्क्राइब इट इन योर 5 सेंटेंस. उसके बारे में 5 लाइन्स लिखना है. ओके, सो माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल. ओके, सो माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल. It is very tasty, right? I eat apple with it peels. It has a small seeds. I love apple very much, right? Moving to the next question. Here some questions are given. You have to answer it. Okay. How does it smell? Related to the apple, the third question only you have to answer me. Okay. How does it smell, apple? It smells sweet. How does it look? It look like a cricket ball, right? Apple look like a cricket ball. How does it feel? It is a hard. When you bite it, what sound does it make?
टच, राइट। जब आप एप्पल खाते हो तो वो आवाज़ कैसा करता है, ऐसे कच आवाज़ आता है, दैट इज कॉल्ड। हाउ डज इट टेस्ट? It is sweet, right? So here is a breathing exercise for you. Close your right nostril with your right thumb. आपको जैसे योगासन में करवाते हैं ना, राइट थम एंड लेफ्ट थम, यू हैव टू नोजल एक तरफ से राइट हैंड पकड़ के अगेन विद द नोज। इनहल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोजल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद द एयर, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोजल विथ योर सेकेंड एंड द थर्ड फिंगर। Remove your finger from the right nostrils and exhale through it. Repeat this exercise slowly in the breathing. With practice, increase your speed. Okay. This is just your exercise. Okay. Moving to the next one. लेट्स राइट। डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स? आपको पता है जो फिश होती है, जो उसकी चमड़ी होती है ना ऊपर की जो बॉडी है, वो वहाँ से ब्रीथ करती है। जैसे कि हमारा नाक है, हम लोग उससे सांस लेते, एयर लेते हैं अंदर, वैसे ही वो फिश की जो ऊपर की बॉडी होती है, स्किन होती है, वो वहाँ से ब्रीथ करती है। राइट 2 सेंटेंस अबाउट अदर एनिमल्स। और भी बहुत सारे एनिमल्स है जो अपने स्किन से ब्रीथ करते, तो उसके बारे में हमें लिखना है। विच कैन ब्रीथ अंडर द वाटर, पन ये पानी में रहने वाले। सो फर्स्ट इज, एनीवन कैन गिव मी द आंसर? फर्स्ट एनिमल्स विच लिव्स इन द वाटर, जो पानी में रहता है, एंड दे कैन ब्रीथ फ्रॉम देयर स्किन ओनली, गिल्स। Oh, I know that. Crocodile, right? Crocodile can breathe under the water. Crocodile जो होती है वो पानी के अंदर रहती है, right? At a time they rest on the side of the pounds. कभी कभी वो पाउंड के साइड में लेटी हुई रहती। She also breathe from the gills only. And one more is there, जो सबने देखा ही होगा, स्नेक्स, राइट? स्नेक्स कैन ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर। स्नेक्स जो होते हैं, बहुत सारे स्नेक्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ फ्रॉम द अंडर वाटर, एंड वो उसकी बॉडी जो उसकी चमड़ी होती है उसी से वो लोग करते। नेक्स्ट, मूविंग टू द सेकेंड वन, पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज। पंचुएशन मीन्स आपको पता ही है, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सपेनिटी मार्क्स, वो सब आपको इसमें यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया है, तो यू हैव टू मेक प्रॉपर आपको प्रॉपर पंचुएशन मार्क यूज़ करने। ओके, आई नो दैट यू कैन डू इट। ओके, मूविंग टू द थर्ड वन, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज अ सर्कल थिंग who smell you like. Okay, now with a blue pencil circle the things whose smell you do not like. यहाँ पे आपको रेड पेंसिल लेनी है, रेड पेंसिल लेनी है और आपको सर्कल करना है जो जो चीज़ें आपको स्मेल करना अच्छी लगती है, और जो चीज़ें आपको स्मेल करना नहीं अच्छी लगती उसको आपको ब्लू कलर से आपको लाइनिंग करी। बट यूज़ क्रेयॉन if not pencil color. Okay, no sketch pen or not on any other color. Okay, smell do not like. Make 5 sentences like this. Okay, I like do not like smell of dash because it reminds me of dash. यहाँ पे दिया है पेट्रोल, रोज, सैंड, चॉकलेट। ओके, चिप्स, शैम्पू, रूट एंड फ्रूट, चंपा, डर्टी शू, सोप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, पेंट, गार्बेज, कॉफ़ी, इलायची। सो यू हैव टू मेक अ सेंटेंस लाइक हियर, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, I do not like the smell of dash because it reminds me of dash. ये सेंटेंस यूज़ करके हमें ये जो बॉक्सेस दिए उसमें से वर्ड्स पिकअप करके यू हैव टू फिल इन द sentence. Okay, you have to make the sentence. Suppose I do not like the smell of the paint because it remind me of a petrol. First sentence is done. Second one, I do not like the स्मेल ऑफ द रूटेन फ्रूट। रूटेन फ्रूट मतलब जो सड़ा हुआ फ्रूट होता है वो, बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ अ डर्टी शूज। आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ सेंट। आई लाइक द स्मेल ऑफ द कॉफ़ी बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ अ चॉकलेट। आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ अ चंपा। ओके, सो वॉट इज इट? यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? टेल मी। सो हियर इज अ स्मॉल पोयम अगेन। टॉल ईयर्स, ट्विंकल नोज, टाइनी टेल एंड होप ही गोज। टॉल ईयर्स किसके होते हैं? कौन से एनिमल्स के होते हैं? ऑफ कोर्स द रैबिट, राइट। ट्विंकल नोज, उसके नोज बहुत छोटी होती है। टाइनी टेल, बहुत छोटी पूंछ होती है। वो होप करता रहता है ना, जैसे कि हम लोग वो होप करते रहते।
What is he? Can you guess? आप पता कर सकते हो कौन है वो? आई फीड हिम अ कैरेट, मैं उसको कैरेट खिलाता हूँ. एंड वाटर क्रिस, हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके बहुत बड़े कान होते हैं. हिज टेल इज स्मॉल, उसकी बहुत छोटी स्मॉल टेल होती है. एंड ही डज नॉट मेक एनी नॉइज एट ऑल, और वो कुछ भी आवाज़ नहीं करता है. टॉल ईयर्स, ट्विंकल नोज, टाइनी टेल, एंड होप ही गोes. What is rabbit? Right, it is written by Mary Louise Allen. Write 3 pairs of words that rhyme with each other. यहाँ पे जो rhyming words ही हमें वो नीचे लिखना है. ओके, so first is nose goes. Right, second will be gas, watercress. Third will be ball, tall. So we have completed the poem exercise. Moving to the next one, the little fir tree. Okay, here is a lesson. It's a short lesson only. I'll explain you now. Okay, uh, little fir tree. It is written by, no, author name is not given. So okay, we will leave it. Okay, so एक बार की बात है. देर वॉज एन मैजिशियन, उसका नाम था शेटी. एक मैजिशियन था, उसका नाम शेटी था. जब एक दिन वो आ रहा था, ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द होम, वैन ऑल ऑफ द सडन इट बिगैन टू रेन, और बहुत ज़ोरों से बारिश आने लगी, बहुत ज़ोरों से. शेटी लुक्ड अराउंड फॉर अ शेल्टर. शेल्टर मतलब जो सहारा, मतलब किसी से सपोर्ट से हम लोग रुक सके. जैसे कि बहुत बारिश हो रही थी तो उसने आजू बाजू देखा कि समवन, मतलब कहीं अच्छा, मतलब कहीं ठहरने की जगह मिल जाए तो मैं बारिश से बच सकूँ. एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री. जैसे ही उसने देखा वहाँ पे एक छोटा सा ट्री था, तो उसने सोचा वहाँ पे जाके नीचे थोड़ी देर रुक जाता हूँ. ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, और वो दौड़ते हुए वो ट्री के पास गया. सून द रैन स्टॉप, फिर वो पेड़ के नीचे गया. देन वो बारिश ख़त्म हो गई थी, बंद हो गई थी. शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट. वो मैजिशियन था, वो बहुत खुश हो गया कि मैं आज भीगा भी नहीं बारिश में. तो देन ही सेड थैंक यू टू द ट्री. उसने थैंक यू ट्री को थैंक यू बोला. यू हैव बीन काइंड टू मी, उसने बोला कि तुमने मेरी मदद की. आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आस्क 4 विशेस. अभी तुम मेरे से 4 विश मांगो. आई विल फुलफिल योर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेट द मैजिशियन. उसने बोला कि मैं ये आपकी 4 विश पूरी कर दूंगा. ओके, द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक अ नीडल्स. उसके जो वो ट्री दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे, उसके जो पत्ते हैं ना वो नीडल्स जैसे होते हैं. नीडल मतलब सुइया जैसे. एंड नो बर्ड्स इवन मेड देयर नेस्ट ऑन इट, और कोई भी बर्ड्स उसके पेड़ पे नेस्ट नहीं बनाते. सो शी इट सेड आई विश आई हैड अ ग्रीन लीव्स. उससे वो विश करता है कि मुझे ग्रीन लीव्स होते तो कितना अच्छा होता. तो नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन उसकी विश ग्रांटेड, उसकी विश पूरी हो गई. ग्रांटेड मतलब पूरी हो जाना. सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स. सडनली एक गोट आई एंड ही एट ऑल द ग्रीन लीव्स. ओ डियर, सेड द फर ट्री. फर ट्री तो उदास हो गया. देन अगेन ही मेड अ विश, आई वॉन्ट अ गोल्डन लीव्स. सो नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन ही वेंट टू द स्पे. अगेन ही वोक अप. जब उठा तो उसने देखा कि मेरे तो गोल्डन लीव्स हो गए. वाओ, आई एम हैप्पी नाउ, ही सेड. अगेन अ मैन केम along एंड स्टोल द गोल्डन लीफ. 2 थीव्स आए और वो गोल्डन लीव्स चुरा के भाग गए. आई विश हैड अ ग्लास लीव इंस्टेड. उसने बोला कि अरे अरे, इससे अच्छा तो मुझे ग्लास के लीव्स होते. मैन डू नॉट स्टील द ग्लास. उसने सोचा कि कोई भी लोग मुझे मेरे पत्ते ना चुराए. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग द ग्लास लीव शोन इन द ब्राइट सन, और उसके ग्लास के लीव्स हो गए. देन एट द नाइट विंड ब्लोस. वाओ वाओ, ऑल द ग्लास लीव ब्रोक. बहुत विंड मतलब बहुत हवा चल रही थी, ना वो सारे ग्लास टूट गए, उसके सारे ग्लास नीचे गिर गए. ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक अ लीव्स बेस्ट. जब फिर उस नेक्स्ट मॉर्निंग देखा तो फर ट्री ने बोला कि इट्स अच्छा तो मेरी ओल्ड जो ग्रीन लीव्स है दैट इज़ बेटर फॉर मी. गोट डू नॉट ईट देम. गोट नहीं खाएगी, ना ही मैन कोई चोरी करने आएगा, ना ही हवा ज़्यादा चलेगी, और उसको कुछ नहीं होगा. The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needle back again. जैसे ही वो ट्री सोने गया, देन उसने मॉर्निंग देखा कि उसके ग्रीन पत्ते वापस उसको मिल गए थे.
ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेट द लिटिल फर ट्री, वो बोल रहा है कि अभी मैं बहुत खुश हूँ अपने ग्रीन लीव्स पाके. सो जो इट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें से आपको ये सीख मिलती है कि आपके पास जो है आपको उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि आपको ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए. आपके पास जो है उसी में खुश रहोगे ना, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा. ओके, प्लीज़ ये याद रखना. ओके, सो मूविंग टू द न्यू वर्ड्स. प्रिटी मीन्स बहुत खूबसूरत. नीडल्स मतलब जो सुइयाँ होती है, लाइक दैट. लीव्स मतलब पेड़ के पत्ते. गोल्ड मतलब सोना, राइट. स्टोल मतलब चुराना. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज हियर. Tick the correct answer. Okay, you have to answer me. Okay, I'll read out the question. The pretty little fir tree was happy with the gold leaves, but जो pretty little fir tree थी वो happy थी, पर gold leaves क्या हुआ था gold leaves का? A goat came along and ate them. All the leaves got wet in the rain. A man stole them. क्या हुआ था gold leaves के साथ? Come on, tell me. अ मैन स्टोल देम, राइट. एक दो आदमी आके उसको चुरा के लेके गए थे गोल्ड ट्री को, गोल्ड लीव्स को. नेक्स्ट वन. द फर ट्री वॉज सैड. फर ट्री क्यों सैड थी? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, या बिकॉज इट हैड अ नीड लाइक लीव्स, या बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट? Because it had a needle like a leaves, that's why he was sad. Moving to the third one. The fire tree was not happy with the golden leaves. वो happy थी fir tree golden leaves पाके. Because the goat came and ate them all. A man stole them. The goat leaves broke. A man stole them, right? Okay, moving to the next exercise. By changing द सर्कल वर्ड टू इट्स ऑपोजिट. जो यहाँ पे रेड कलर के सर्कल की है उसको आपको ऑपोजिट है, जो आपको ऑपोजिट में लिखना है. ओके, रीराइट दिस सेंटेंस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपके लिए एक किया हुआ है. सो ऑल द रेड सर्कल यू हैव टू चेंज इन ऑपोजिट वर्ड. आई कैरी अ लाइट बैग टू द स्कूल एवरी डे. आई कैरी लाइट का ऑपोजिट heavy. Rest of the sentence you have to write the same, but the round word you have to change as a opposite. So the red circle you have to change it. Okay, Reena won the race. Okay, so Reena won ka opposite loss, right. Reena lost the race. Okay, moving to the third one. I love eating vegetable. So what is the opposite of love? I hate eating vegetables, right. Moving to the fourth one. This glass of milk is full. What is the opposite of full? The glass of milk is empty, right. Moving to the fifth one. The old man is wise. Wise मतलब बहुत समझदार. So this old man is foolish. Okay, so moving to the next exercise. Now give the opposite of the words below the adding an un and im. Okay, so here the opposites. तो आपको इसमें you have to use un and im. So आपको कहाँ यूज़ करना, that you have to answer me. Okay, happy opposite, what you will use, un या im. im happy तो हो नहीं सकता है, of course unhappy will come. Okay, so moving to the second one. Polite, impolite, seen, unseen, proper, improper, lucky, unlucky, possible, impossible, important, unimportant, perfect, imperfect, healthy, unhealthy, safe,
unsafe, patient, impatient, pure, impure, right? Moving to the next exercise. Here also Rita loved her dog Shiro. रीता को अपना डॉग शिरो बहुत पसंद था. Every day Shiro would go out of the house and come back himself. But one day he did not came home. और एक दिन ऐसा हुआ जो वो डॉग वापस ही नहीं आया. रीता लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम. रीता ने बहुत जगह ढूंढी. टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स. और उसके आंखों से आंसू बहने लगे. शीरो वॉज लॉस्ट. शीरो गुम हो गया था. ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. वो कहीं भी नहीं मिला. रीता वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच होम. जब वो घर पहुंची शी गॉट इन टू हर बेड. वो बेड के ऊपर बैठ के रो रही थी. ऑल ऑफ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर. और सडनली उसके बेड पे कोई जंप करा. कैन यू गेस हु इज इट, हु इट वॉज? रीता वॉज वेरी हैप्पी. गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन अ ब्लू. जो ये ब्लू वर्ड्स में यू हैव टू राइट द ऑपोजिट ऑफ दैट्स वर्ड्स. ओके, जो यहाँ पे ब्लू वर्ड्स में दिए द ब्लू वर्ड्स आर गिवन, सो यू हैव टू राइट द ऑपोजिट ऑफ दैट वर्ड्स. ओके, लव्ड, हेड, राइट. गो आउट, कम इन, कम, गो, एवरीवेयर, nowhere, down, up, lost, found, nowhere, everywhere, crying, laughing, happy, sad, right? So we found the opposite words, right? So moving to the next exercise. Hope you understood. Here rewrite the passage below using capital letters with necessary. यहाँ पे you have to fill in the you have to complete the sentence by using the capital letters. Okay, जहाँ जहाँ capital letters use करना है वहाँ पे आपको capital letters use करना है. Okay, I know that you can do it. Moving to the next exercise. Look at the picture below. In the yellow box there are 8 things. यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है आपको एंड योर साइड बॉक्स इज गिवन येलो बॉक्स. यू कैन सी द 6 ऑफ देम इन द पिक्चर. आप वहाँ पे 6 बोर्ड्स देख सकते हो, राइट. यू कैन नॉट सी द अदर 2. और उसमें से 2 चीज़ें आप नहीं देख सकते हो. राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी. और जो जो चीज़ें वहाँ पे दिख रही है 4 चीज़ें यू हैव टू राइट हियर. ओके, इन द ब्लैंक्स. सो डक इज देयर, डक्स, यस डक्स इज देयर. And dog is there? No, I can't see the dog, right? Boy is there? Yes, boy is there. Fountain is there? Fountain मतलब जो फुवारा होता है that is called an fountain. Fountain है? No, I can't see the fountain. Mat है? Yes, mat is there. Girl is there. Tree is there, right? Flowers are there. Everything else, but 2 things are not there. What? Dog and fountain is not there. Okay, moving to the next one. Look at the picture again. Describe the picture. अगर अब see the picture and describe the picture. यहाँ पे पिक्चर में आपको क्या दिखाया था? You have to describe it. The ducks are swimming in the pond. The first sentence is done. Second one, what you can see? The girl is sprinting towards a small bird, right? And third one, the boy is looking at the small bird. Here, Arjit loved the flowers. He always wanted to have a garden for himself. अरिजीत नाम का एक लड़का था और उसको गार्डन बहुत अच्छा लगता था. मोहन, his friend gave him an idea. उसका फ्रेंड मोहन नाम था. उसको उसने एक आइडिया दिया. He said, why we can have a garden in a dish. तो उसने पूछा why we have a garden. हमारे पास गार्डन क्यों है? हाँ हाँ हाँ, in a dish. अरिजीत लॉफ्ड. अरिजीत हंसने लगा. गार्डन इन अ डिश? डिश में कैसे गार्डन हो सकता है? आर यू जोकिंग? यस, डिश में भी गार्डन हो सकता है. आर अ टाइनी गार्डन प्लांटेड इन द शैलो डिश. तो उसने बोला कि डिश में भी गार्डन हो सकता है. वी मस्ट फर्स्ट पुट सम सैंड. हमें एक प्लेट लेनी है, उसमें थोड़ा सैंड लेना है. मैन्यूर एंड पेबल्स इन अ डिश. बहुत सारी मिट्टी डालनी है. प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट. और हमें छोटे छोटे पौधे लेना है. प्लांट इट एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल. और वो प्लेट जाके आप विंडो सिल में रख दो. छोटा सा गार्डन हो जाएगा आपका, राइट.
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट ड्रॉप्स. आपको पता ही है, जब आप कुछ कांच की चीज़ें रहती हो तो आप कभी ना कभी हाथ से छूट जाती है तो वो टूट जाती है. आप वापस उसको जोड़ सकते हो? नो. कांच, ग्लास कैन नॉट बी अगेन reusable. Do you think a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, or a book, or your plastic water bottle can break easily? Circle the thing that can. मतलब जो चीज़ें टूट जाती है उसको सर्कल करना है. ओके, स्पून यहाँ पे कांच की है तो वो टूट जाएगी. ऑफ कोर्स. टेबल, नो. फ्लावर पॉट जो कांच का है, ऑफ कोर्स इट कैन बी. प्लास्टिक वाटर बॉटल, नो. बुक्स, नो. कप, प्लास्टिक कप, नो. इट कांट बी ब्रेकेबल. सो ओनली ब्रेकेबल इज स्पून एंड फ्लावर पॉट. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर्स हैप्पी. यहाँ पे कौन से ऐसे एक्शन है जिससे दूसरे खुश होते या ना खुश होते. ओके, सो यहाँ पे येलो कलर का बॉक्स दिया तो यू हैव टू पिक अप द सेंटेंस फ्रॉम देयर एंड यू हैव टू राइट एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी. मतलब एक्शन आप ऐसे करते हो जो दूसरों को खुश करते हो, और एक्शन दैट मेक्स पीपल अनहैप्पी जो दूसरों को खुशी नहीं देता हो. वैसे आपको 5-6 सेंटेंस यू हैव टू मेक. सो फर्स्ट वन इज what you will use. Respecting elders. So what will be unliking word? Not saying thank you, right? And what will be here? Second one, being polite. And that side, unhappy one, not sharing. मतलब हम किसी से थिंग्स शेयर नहीं करते, वो बहुत बुरी बात होती है. एंड मूविंग टू द थर्ड वन, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स. मतलब दोस्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा होता है और दूसरों को भी खुश करता है. and the opposite side, वॉचिंग टेलीविजन ऑल द डे. पूरे टाइम टेलीविजन देखना दूसरों को अनहैप्पी कर सकता है. ओके, मूविंग टू द फोर्थ वन, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड. मतलब जो बीमार आपका दोस्त है उसको मिलना. सो उसको अपोजिट, टेलिंग लाइज. मतलब झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, दूसरों को भी नुकसान करवा, मतलब दूसरों को भी हर्ट कर सकती है. फिफ्थ वन, केयरिंग फॉर पेट्स. मतलब जब हमारे पेट होते तो उसका ख्याल रखते हो, दैट इज़ गुड थिंग. एंड बीइंग ग्रीडी, मतलब अपने आप को घमंड करना, राइट. सिक्स वन, बीइंग हॉनेस्ट. मतलब अपने आप को हॉनेस्ट रखना. एंड सिक्स वन, गेटिंग एंग्री इजीली. जल्दी से गुस्सा आ जाना, दैट इज़ अ बैड थिंग. ओके, नाउ हियर लेट्स लिसन एंड रीड एंड राइट. देर वॉज अ थिक जंगल. एक बहुत घना जंगल था. विथ अ ब्यूटिफुल ग्रीन लीव्स. बहुत सारे ग्रीन लीव्स थे. बर्ड्स, कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली. कोयल भी थी. सडनली शी हर्ड समवन क्राइंग. कोयल ने देखा कि कोई रो रहा है. इट वॉज हर फ्रेंड. देखा तो उसकी फ्रेंड थी. द पिकॉक, शी फ्लू टू हिम एंड आस्क. वो वहाँ पर उसके पास गई और पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग. उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो. आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट. वो रो रही थी. उसने बोला कि मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मेरे इतने गंदे फीट है, उसके पैर. समथिंग मेक यू फील हैप्पी, समथिंग मेक यू फील सैड. उसने बोला कि थोड़ी चीज़ें होती जो हमें खुश करती, थोड़ी चीज़ें हमें दुख देती. राइट अ पोएम ऑन अ पिक्चर. ओके, दिस लेट्स मेक अ वर्ड ट्री. ओके, हम लोग वर्ड ट्री बनाने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ हाउ यू विल डू इट. आपको करना क्या है, टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ अ पेपर आर अ न्यूज़ पेपर. आपके घर में अभी न्यूज़पेपर तो हो गया, राइट. रोल इट, उसको रोल करो. ओके, hold the roll of a paper firmly in a one hand and cut 4 slices from the top to and half way down the roll. और वो रोल करने हुए पेपर को 4 साइड से ऊपर से 4 शेप में 4 स्ट्रिप्स में काट लो. ओके, आधे में करना, आधे रोल रख देना ऐसे. स्टिल होल्डिंग द रोल ऑफ द पेपर फ्रेमली, बेंड बैक द 4 सेक्शंस ऑफ द कट पेपर. जो हमने कट किए थे उसको नीचे की तरफ बेंड कर दीजिए. पुल आउट द ब्रांचेस. जो ब्रांचेस निकाली थी उसको पुल कर दो वापस ऊपर. डू दिस बाय पुलिंग अप द कट सेक्शन स्लोली एंड केयरफुली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोल. Write words related to the leaves on the tree and make a word tree. Okay, now make sentence with this sentence. Okay, it's a nice story. Thank you.